हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जेटलूप फैमिली के बारे में। देखो जेटलूप जो है ऑप्शन ऑफ जेटियल is crucial protein in the plant Arabidopsis agena function primarily as cycadian photoreceptor. It plays a significant role in regulating the plant system clock by mediating the degradation of specific clock protein, thereby ensuring synchronization with the environmental light and dark cycle. फिर आता है सर्काडियन rhythm regulation. Jet loop is essential for maintaining a normal circadian period by controlling the proteasome-dependent degradation of the central clock protein timing of CAP, CAP expression in TOC1 1 3. This regulation is vital for the robust cycling of key clock elements necessary for various cellular processes. Light sensitivity. The protein contains low domain light, oxygen, or voltage domain, which allows to respond blue light. This domain is crucial for its stability and function. As it interact with another protein, gigantia, and blue light enhanced luminosity for the interaction stabilize the loop and contribute to its oscillating behavior, which is crucial for proper clock function. Such a role in flowering growth. Jet to be also influence photo or morphogenesis and the growth development of plant in response to light and flowering time. Jet loop in ZTL can lead to change hypocotyl length and flowering time, demonstrating its broader impact beyond its circadian 2-3. कहते हैं ubiquitination and degradation. तो कहती है as evokes a protein. Jet loop target a protein for ubiquitination for condemned degradation via the proteasome. This mechanism is integral to its role in controlling circadian and other development process 2-3. देखो जेट लूप जो होती है ना, जेट लूप है ब्लू लाइट फोटोरिसेप्टर। कैसे होते हैं ब्लू लाइट फोटोरिसेप्टर? दैट रेगुलेट डे लेंथ फोटो पीरियडिज्म एंड सर्काडियन रिदम है। jet triggers environment signals such as light to dark or dark to light transition that synchronize the endogenous oscillator to 24 hour periodically. Three distinct classes of photoreceptor mediate the effect of UVA blue light 322-500 nanometer. The cryptochrome phototropin and ZTL family of proteins. The ZTL family has been shown to participate in the control of circadian clock and flowering. The plant contains three types of UVA blue light sensitive photoreceptor. These are cryptochrome 1 and phototropins photo 1 or photo 2. UV and blue light sensitive receptor cryptochrome phototropins photon photo and jetloop. Jetloop is a circadian photoreceptor stabilized by gigantia in blue light. फिर देखो हम देखेंगे फोटोट्रोपिज्म स्ट्रक्चरल एक्शन। देखो डोमिनेट स्ट्रक्चर ऑफ पैराविडोसिस फोटो 1 and photo 1 along with their related blue light photoreceptor found in plant or algae, neochrome, jetloop and Eurochrome. The phototropin contains two light sensitive domain oxygen. Phototropin contains two light sensing light oxygen voltage domain level and level to each binding chromophobin. क्योंकि किससे बाइंडेड रहते हैं? F1 molecule से बाइंडेड रहते हैं। In the dark one F1 molecule is non-covalently binded. डार्क के अंदर क्या होते हैं? नॉन कोवेलेंटली बाइंडेड रहते हैं बाउंड टू ईच लव डोमेन। Upon blue light illumination, the F1 become covalently bound. जैसे ब्लू लाइट आती है तो F1 कैसे हो जाता है? कोवलेंटली बाउंड हो जाता है। सिस्टीन reduces in phototropin molecule forming a cysteine flavin covalent adduct. क्या आता है? Forming a cysteine flavin covalent adduct. The lateral domain is primarily responsible for kinase activation in response to blue light. The LOVE2 domain is primarily responsible for kinase activation in response to blue light.
The blue light induces a conformation changes that uncase okay, kinase domain of phototropin and leads to autophosphorylation. देखो ये है लव वन और लव टू, इसके साथ में क्या होता है कॉमन मॉलिक्यूल बाइंडेड रहता है। लाइट के अंदर ये कैसा होता है कॉमनली बाइंडेड होता है। लाइट में कैसा हो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाइंड होता है किसके साथ सिस्टर नेगेटिव के साथ। और जबकि डार्क में क्या होता है नॉन कोवेलेंटली बाइंडेड रहता है और जेड अल्फा हेलिक्स काइनेस डोमेन रहता है इसके साथ में। देखो ब्लू लाइट ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है फिर ठीक है। देखो PP2 है डार्क फॉस्फोराइलेशन में कॉमन लव लव वन लव टू काइनेस डोमेन जो है एक्सपोज हो जाता है जिससे लाइट आती है तो ये सबस्ट्रेट के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर देता है और फोटोट्रोपिन रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। देखो म्यूटाजेनेसिस एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें लव टू डोमेन एसेंशियल फॉर ब्लू लाइट इंड्यूस काइनेज एक्टिवेशन। ये किसके लिए एसेंशियल है किसके लिए ब्लू लाइट इंड्यूस काइनेज एक्टिवेशन एंड ऑटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ द फोटोट्रोपिन फोटोरिसेप्टर। और किसके लिए ऑटोफॉस्फोराइलेशन करता है किसका फोटोट्रोपिन रिसेप्टर का म्यूटेटिंग द कंजर्व सिस्टीन residue in the lower domain of photon does not affect phototropic response। इस अगर हम कर दे लोअर डोमेन में म्यूटेशन कर दे तो हमको कोई ऐसे इफेक्ट देखने को मिलेगा नहीं। वेन whereas the equivalence mutation in love 2 abollishes the response। लेकिन अगर लव 2 के अंदर हम म्यूटेशन कर देते हैं तो हमको रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। mutating the conserved system residue in love 2 domain of photon। फोटोन का तो रेस्पॉन्स हमको नहीं दिखने मिलेगा। कंजर्व रेजिड्यू for love 2 W16 को म्यूटेट कर दिया। These and other studies have demonstrated that the importance of love-2 in controlling phototropin function. That this is due to only part of position of love-2 within the phototropin molecule, or it is coupled to a protein region known as the Z-alpha. And this is due to the part of love-2 within the phototropin molecule, where it is coupled to a protein region. And किसके साथ में ये कपल रहता है Z-alpha हेलिक्स is important for propagating light travel changes within love to kinase domain. The function of love one is still poorly understood. Poorly understood है, but domain is thought to play a role in its receptor dimerization। लेकिन ऐसा हो जाता है कि receptor dimerization के अंदर ये काम करता है। फिर देखो क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट की अगर हम बात करें है ना क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट इन लीव्स और अडैप्टिव फीचर्स दैट occur in order to control light absorption and prevent photo और डैमेज। देखो इन लो लाइट इंटेंसिटी तो इसमें क्या देखने को मिलता है accumulation response देखने को मिलता है। when incident radiation is low light intensity chloroplast moves at the upper and lower surface काफी चले जाते हैं अपर और लोअर सरफेस पे चले जाते हैं मुझे सर मैक्सिमाइज दैट लाइट ऑब्जर्वेशन मुझे सर क्या होती है मैक्सिमाइज कर देती है लाइट ऑब्जर्वेशन को। मैक्सिमाइज मैक्सिमम लाइट हार्वेस्टिंग बाय क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटो कहता है दूसरा जाता है इन हाई लाइट sensitive abundance देखने को मिलेगा under high intensity of light contrast move to the sensor rays added parallel to the incident light and the light absorption protecting from strong photo। Critical absorption photon mutant that have a normal avoidance response and poor accumulation response होता है। photo mutant की अगर बात करें तो लेक होता है इसके पास में avoidance response but retain हो जाता है fairly normal accumulation response। लेक टू तो अवॉइडेंस रेस्पॉन्स लेकिन ऑटोमेटेड लेक अवॉइडेंस रेस्पॉन्स बट रिटेन देयर नॉर्मली एक्यूमुलेशन रेस्पॉन्स। अगर हम सेल में फोटो वन और फोटो दोनों को डबल म्यूटेट कर दे ले कर देते हैं बहुत अवॉइडेंस और एक्यूमुलेशन रेस्पॉन्स। फिर देखो हम देखते हैं फोटो पेरियोडिज्म है ना। देयर इज अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन दिस क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफाइंड फॉर defined different for different plant based on this duration plant can be categorized into three category long developed short developed and day neutral plant। फाइटोक्रोम जो होता है ना इनके पास में कुछ पिगमेंट होते हैं प्लांट के लिए जिसमें लाइट को रिसीव करते हैं जिसे हम फोटोरिसेप्टर बोलते हैं। और ये है इनका जो नाम है उनको फाइटोक्रोम होता है जो इसकी सिंथेसाइजिंग फॉर्म होती है ना वो पीआर होती है। लाइट आज देखें तो पीआर जो होती है ना वो इनएक्टिव होती है
और ये रेड लाइट को कन्वर्ट करके किसमें पीएफआर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जो कि कैसे होती है, एक्टिव। वैसे जो जो फार लाइट होती है ना, वो क्या होती है, इनएक्टिव होती है। अब जैसे इसके ऊपर पड़ेगी ना पीएफआर के ऊपर फार रेड लाइट, तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। ये देखो तो सबसे पहले क्या था, फाइटोक्रोम फॉर्म। पीआर तो इनएक्टिव फॉर्म होता है, और ये रेड लाइट को रिसीव करने में किसमें जाता है, फार रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और एक्टिव एक्यूमुलेशन रेस्पॉन्स हो जाता है। फार लाइट डार्क लाइट रिवर्जन स्लो होता है इसके अंदर। डार्क के अंदर, दिन के अंदर लाइट ज्यादा होती है तो जल्दी जल्दी फार रेड लाइट पीएफआर फॉर्म बनेगी, और क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पीएफआर में। लेकिन लाइट दिन के अंदर क्या होता है, पीएफआर जो लाइट है वो बहुत ज्यादा है, तो पूरा का पूरा जितना बना था वो कम इसके अंदर चेंज नहीं होता है। देखो एलडीपी के अंदर क्या मोड ऑफ एक्शन, कंसिडर लाइट। कंसिडर देखो लाइट कितनी होती है, हम कंसिडर करें तो अगर लाइट की रिक्वायरमेंट देखें तो कितनी होती है, 14 आवर। डार्क कितना होता है, 10 आवर। जैसे कि पीआर इनएक्टिव, जैसे हम इसको 14 आवर की लाइट देंगे ना, तो रेड लाइट को रिसीव करके कितने हो जाएगा, फाइटोक्रोम के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है। अब पीएफआर, अभी अब क्या होता है, जैसे कि रात आती है, रात कितनी है, 10 आवर की, लेकिन इसने काम करके बनाया कितना, 14 घंटा का काम करके इसने पीएफआर बनाया था। 10 घंटे के अंदर ये जो जितना 14 घंटे के अंदर बना था ना, वो पूरा का पूरा चेंज नहीं हो पाता है। कुछ जो है बढ़ता हुआ रहता है पीएफआर, जो कि ना मतलब एलडीपी के अंदर क्या करवाता है, फ्लोरिंग करवाता है। देखो एसडीपी के अंदर क्या देखा, मोड ऑफ एक्शन कंसिडर, जो मतलब इसके अंदर क्या होता है, लाइट डार्क कितना होता है, 14 होता है। लाइट कितना होता है, 10 घंटे का होता है। प्लांट का फाइटोग्राम जो होता है ना, इसके अंदर पीआर होता है। देखो जो पीआर होता है ना, रेड लाइट वो 10 घंटे के अंदर चलती है, तो ये पीएफआर बनता है, अक्यूमुलेशन होता है। लेकिन जैसे ही मतलब क्या होता है, डार्क आती है, तो ये पूरा का पूरा जो चेंज है ना, वो किसमें जाता है, पीआर के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पीएफआर बचता ही नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है, अब फिर जो पीएफआर है ना, वो फ्लोरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। कि देखो अब ऐसा माना जाता है कि जो एक्सियो नाम का प्रोटीन बनती है एसडीपी के अंदर, जो कि सो डीपी एसडीपी के अंदर क्या होती है, अनस्टेबल होती है, जो कि लाइट के फोटो रेडिएशन के रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जबकि एलडीपी के लिए जो क्या है, फोटो रेडिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, लाइट की अगर हम बात करें, है ना, फ्लावरिंग वेजिटेटिव पैरालिटी है। फिर देखो अब जैसे इसमें क्या है, लाइट पीरियड ज्यादा है तो ना एसटीबी के अंदर तो नहीं होता है। और यहाँ पे देखो ये है हमारा लाइटिंग टाइम, ये है शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, अब इसमें डार्कनेस देखो कितना ज्यादा है, तो एसडीपी के अंदर क्लोजिंग हो जाएगी, और रजिस्टिव एलडीपी के अंदर नहीं होगी। यहाँ पे एलडीपी के अंदर क्लोजिंग हो जाएगी, यहाँ पे एलडीपी के अंदर क्लोजिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी एलडीपी के अंदर होगी, यहाँ पर भी एलडीपी के अंदर होगी। यहाँ जो क्लोजिंग है वो किसके अंदर हो जाएगी, एसडीपी के अंदर हो जाएगी। फिर देखो बात करें, फोटो रिसेप्टर जो होते हैं, फोटो रिसेप्टर प्लांट के अंदर रेड फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिन्हें फोटो रिसेप्टर बोलते हैं। ये फाइटोक्रोम होता है, ब्लू ग्रीन पिगमेंट प्रोटीन होती है। कैसे होती है, ब्लू ग्रीन कलर की पिगमेंट प्रोटीन होती है, विच एक्टिंग एज ए फोटो रिसेप्टर, किसकी तरह काम करती है, फोटो रिसेप्टर की तरह काम करती है। और देखिए रेड लाइट, रेड और फार रेड लाइट फोटो रिसेप्टर है। पीआर जो है किसके अंदर कम होता है, पीएफआर के अंदर। पीआर पीएफआर किसके अंदर, इसके टाइप देखे हम, तो ए होता है जो कि मेनली किसको करता है, फार रेड लाइट को करता है। जबकि कौन सी है, टाइप बी के अंदर प्रकार दो तेज दो टाइप के जीरो होते हैं। फर्स्ट जो है वो किसको करता है, फार रेड को, बाकी 20 से लेके ई तक उनसे करता है, रेड लाइट को करता है। अब देखें ब्लू लाइट रिसेप्टर की अगर बात करें, तो ब्लू लाइट रिसेप्टर के अंदर हमारे पास तीन होते हैं। एक तो होता है क्रिप्टोकॉन जो जेट ट्यूब। देखो क्रिप्टोकॉन जो होता है ना, ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर होता है, जिनके पास में क्या होता है, फ्लेवन प्रोटीन होता है, स्ट्रक्चर रिलेटेड टू फोटोलाइट, जो किसके जैसा होता है, फोटोलाइट के जैसे स्ट्रक्चर होता है। इसके पास में क्राइबर एंड क्राइटो आर जनरली फाउंड इन द न्यूक्लियस। क्राइबर और क्राइटो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा। क्राइटी जो है कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फोटोट्रोपिन जो है ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर होता है, फ्लेविन। जिनकी अगर बात करें, इसमें एक तो होता है फोटो 1, एक होता है फोटो 2। और ये रोल किसमें प्ले करता है, क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट के अंदर रोल प्ले करता है। जैसे रहती है जेटल्यूट फैमिली, और थर्ड आती है जेटल्यूट फैमिली।
देखो अब देखिए हम सबसे पहले डार्क के अंदर बात करें। डार्क के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, ईटीआर ग्रोथ देखने को मिलती है, जिस प्रोसेस को हम मतलब लंबे लंबे प्लांट देखने को मिलेंगे कि पेल येलो कलर के है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस। फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो इन partial or complete absence of light. The pale color results from lack of chlorophyll. Some of the changes that occur include closed cotyledons है, apical hook का formation होता है, short root होती है ना, elongation of stem, long weak stem, hypocotyl elongation, weakening of cell wall in stem and leaves. ठीक है, स्टेम और लीव्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो कमजोर होती है। longer internode होती है, hence fewer small leaves per unit length of stem. मतलब छोटी छोटी ही लीव्स लगती है। क्लोरोसिस होता है पेल येलो ये व्हाइट कलरेशन लेक ऑफ क्लोरोफिल। तो देखो डिटेलेशन जो है लाइट के अंदर देखने को मिलता है, प्रोसेस होती है फोटोमॉर्फोजेनेसिस। इसके अंदर क्या होता है, मतलब छोटा लेंथ जो रहती है ना इसकी छोटी रहती है। डिटेलेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ सीडलिंग फ्रॉम below of ground to growth above or ground growth form. This process is regulated by the exposure of various photoreceptors. Pigment to lens बहुत से फोटोरिसेप्टर के द्वारा होता है। सम ऑफ चेंजेस दैट अकर इन कॉल, ये निर्भर करता है हाइपोकोटाइल की लेंथनिंग को। ठीक है, हाइपोकोटाइल की लेंथनिंग को निर्भर करता है, स्टिमुलेट करता है कोटिलेटन के एक्सपांशन को और लीफ के एक्सपांशन को। ओपनिंग ऑफ द ऑप्टिकल हुक, ऑप्टिकल हुक का जो है ओपनिंग ऑफ द ऑप्टिकल हुक एंड कोटिलेटन्स और स्टिमुलेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ एंथोसायनिन, स्टिमुलेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट, एटियोप्लास्ट पिगमेंटेशन। अब देखो इसकी फाइटोक्रोम की स्ट्रक्चर की अगर बात करें ना तो ये डायमर की फॉर्म में पाया जाता है। इसके पास जो एन टर्मिनल होता है ना इसके पास में कहता है पास गैप पाई डोमेन होता है, जबकि सी टर्मिनल के बाद देखिए पीआरडी डोमेन और चारकाडी डोमेन होता है। पीआरडी जो होता है ना, नो एनालिस फॉर पीएफआर 5 बी न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा पाता। तो देखो साइन ऑफ बैक्टीरिया की अगर बात करें ना, अगर हम उसके अंदर जो फाइटोक्रोम उसमें क्या होता है, सिर्फ इसके सी टर्मिनल पर एचके डोमेन ही है और पीएलसीबी पीसीबी पास गैप पाए। और बैक्टीरियल के अंदर क्या है, पास गैप पाए और एच के बी। देखो एन टर्मिनल पास, एन टर्मिनल के पास कहता है पास डोमेन गैप डोमेन विद लीन लाइज एक्टिविटी, जिसके पास में क्या होता है लीन लाइज एक्टिविटी विच बाइंड्स द क्रोमोफोर, किसके साथ में क्रोमोफोर को बाइंड कर देगा। पाई डोमेन विच इज स्टेबलाइज द फाइटोक्रोम इन द पीएफआर, पाई डोमेन है जो कि स्टेबलाइज करता है फाइटोक्रोम को इन द पीएफआर फॉर्म। The pass gas white domain comprises the chromophore binding photosensory region of phytochrome. फिर देखो a hinge region separate the N terminal C terminal halves of the molecule. hinge region जो होता है ना किसको सेपरेट कर देता है, N terminal और C terminal को। downstream of the hinge region two pass related PRD pass related पीआरडी डोमेन रिपीट्स इमीडिएट फाइटोक्रोम डाइमराइजेशन, जो कि किसकी तरह काम करता है, फाइटोक्रोम का डाइमराइजेशन काम करता है। तो पीआरडी डोमेन हैज बीन इंटीग्रेटेड इन टारगेट के पीएफआर फॉर्म ऑफ पीएफआर बी टू न्यूक्लियस दैट इज लेक न्यूक्लियर कैनोनिकल न्यूक्लियर न्यूक्लियराइजेशन सीक्वेंस सक्सेस होता है। तो सीरियल में रीजन ऑफ कार्डियोआइकोरम जो है उसके पास में रहता है कंटेन होता है इस रीजन का डोमेन एंड इस रीजन higher plant phytochromes. Unlike bacteria, phytochromes lack abundance of histidine kinase domain. The chromophore is attached to cysteine residue in the protein via thioester linkage. Note the residue that form a linkage is located in the canonical phytochrome 5. It is located in the terminal external bacterial phytochrome. देखो 5B जो होता है इसके पास में कोई जनरल सीक्वेंस नहीं होता है। जैसे इसके पास में रेड लाइट आएगी ना फिर वो पीआरडी जो है इस काम में इस तरह काम नहीं करता है। तो ये क्या करता है, एक प्रोटीन है पीएच1 वाई जिसके पास में एनालिस की तरह काम करती है। ये जैसे न्यूक्लियस के अंदर जाती है तो डिग्रेड हो जाती है, न्यूक्लियस रेस्पॉन्स करके डिग्रेड हो जाता है पीएफआर का। 5B जो होता है ना इसके पास में जैसे रेड लाइट आती है तो पीएफआर अब का जो पीआरडी डोमेन है वो न्यूक्लियस की तरह एनालिस की तरह काम करता है। ठीक है, इसके पास कोई एनालस नहीं होता है लेकिन पीआरडी एनालस की तरह काम करता है, न्यूक्लियर रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। साइटोक्रोम ए बी सी डी ई, पीआर जो है डाइमर रेड लाइट
पीएफआर डायमंड रेड लाइट एक्टिव फॉर्म कर परमिशन चेंजेस रेस्पॉन्स देख रहा है। फिर व्हाइट ऑक्सीजन में एबी लाइट डिपेंडेंट फ्लक्चुएशन में काम करता है। तो देखो पीआईएफ जो है नाइट के अंदर जो है वो क्या करती है, ये पीआईएफ जो है वो एक्टिव रहता है, तो पीआईएफ इंड्यूस जीन है वो रहते हैं, ठीक है, जैसे कि स्कोटोमोर्फोजेनेसिस सिचुएशन, और पीआईएफ रिप्रेस जीन जो है इनएक्टिव रहता है। लेकिन जैसे डे आता है पीआईएफ कम हो जाता है तो पीआईएफ रिप्रेस जीन इनका एक्टिवेशन हो जाता है, पीआईएफ इंड्यूस जीन का क्या हो जाता है, ऑफ हो जाते हैं, ऑफ हो जाता है। तो स्कोटोमोर्फोजेनेसिस देखने को नहीं मिलेगी, फोटोमोर्फोजेनेसिस या डिओटोनेशन देखने को मिलेगा। आगे की अगर बात करें नेगेटिव रेगुलेटर जो है इनहिबिट करेंगे किसको, फोटोमॉर्फोजेनेसिस को, जिनके जो जैसे कि कॉनिक कॉपर है, स्पाई पीआई पवन है, ये सारे के सारे इनहिबिट करते हैं। पॉजिटिव रेगुलेटर की अगर बात करें तो वो इंड्यूस करते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस को, जैसे आ जाता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हाई फाई लाहवन और एचएफआर1। तो देखो डार्क के अंदर क्या होता है, कॉपर रिमेन इन द न्यूक्लियस, कहां पे रहता है, कॉपर जो है न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और कॉपर फंक्शन है यूनिट लाइगेज किस तरह काम करता है, यूनिट लाइगेज टारगेट एक्स वाई फाइव फाइव डिग्रेडेशन, हाई फाई का क्या करता है, डिग्रेडेशन करता है सिंथेसिस प्रोटीन सिस्टम से। नो फोटोमोर्फोजेनेसिस ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, नो फोटोमोर्फोजेनेसिस नहीं होता है, लेकिन लाइट के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जाता है कॉपर, और हाई फाई जो है बहुत ज्यादा होता है, हो जाता है, तो जैसे कॉपर का डिग्रेडेशन है, कॉपर हाई फाई जो है करता है ट्रांसक्रिप्शन। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इन द डार्क कोपवन ई3 यूबिक्विटिन लाइगेज, कोपवन जो है वो क्या करता है ना, एचपीएल के साथ बाइंड कर देता है, जो कि हाई एच एफ आर वन है, एल वन है, हाई फाई है, इन दोनों का क्या कर देगा, डिग्रेडेशन कर देगा। यूबिक्विटिन प्रोटीन में टारगेट हुआ डिग्रेडेशन बाय प्रोटीन। ये देखो लाइट के अंदर क्या था, कोपवन इज स्लोली एक्सपोज्ड बाय साइटोसोल बट बिफोर इट रिलीज द न्यूक्लियोसिटी एंड यूबिक्विटिन टेक्स टू 5A, लेकिन जाने से पहले ये क्या करता है, 5A के ऊपर जो है यूबिक्विटिनेशन कर देता है, ठीक है। फिर बाद के अंदर क्या हो जाता है, तो उसका भी फिर देखो absence ऑफ क्या होता है, absence of common in the nucleus limit the accumulation of transcription activator necessary for photomorphogenesis development। देखो shadow evidence, देखो some scenario happen in canopy, shadow evidence is a set of responses that plant display when they are subjected to the shade of another plant. It often includes elongation, altered flowering time, increased vertical dominance, and also partitioning of resources. This set of responses is collectively called shadow avoidance syndrome। इसको कहते हैं shadow avoidance syndrome। क्या कहता है, लोग देखो in the shade of plant far red light is present in a higher amount of in shadow avoid of plant के अंदर कहता है far red light is present higher amount than the red light। तो लो जो है क्या होता है, far red light रे बिल्कुल far red light is रेड लाइट जो तो कम होती है, far red light ज्यादा होती है, और हाई पीआर होगा, हाई पीआर होगा तो हाई पी ए बनेगा, ए बनेगा और लो बी बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन हेल्प नहीं होंगे, ऑक्सीजन हेल्प करता है इलोंगेशन के अंदर। फिर देखो ग्रोथ follows the property of phytolectar, growth follows करता है ऑक्सीजन हेल्प इन इलोंगेशन पे है करने on growing beneath in canopy use phytochrome to sense the R part ratio in regulating such a process as a shadow evidence। देखो क्रिप्टोक्रोम जो है वो क्या है, ठीक है, क्रिप्टोक्रोम क्रोमोफोर फोर क्रिप्टोक्रोम इज फ्लेविन टेरिन, क्या होता है, फ्लेविन टेरिन होता है। थ्री कॉमन फ्लेविन आर राइबोफ्लेविन एंड क्रोमोफोर फोर फ्लेविन एंड टेरिन, थ्री कॉमन फ्लेविन राइबोफ्लेविन डेरिवेटिव्स एंड एफामन एफएडी, then complex with protein, flavin complex with protein flavoprotein, so the cryptochrome is flavoprotein। फिर देखो फ्लेविन जो है फ्लेवोप्रोटीन, फ्लेविन कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन फ्लेवोप्रोटीन, सो द क्रिप्टोक्रोम क्या है, फ्लेवोप्रोटीन। क्रिप्टोक्रोम जो है बाइंड किससे रहता है, एक तो एफिडी से रहता है,
कैम्पटिव सब कौन किसी तरह काम करते हैं, क्रोमोफोर की तरह काम करते हैं ये। ठीक है। अब इसकी अगर बात करें हम, जैसे कि अरेबिडोप्सिस थालियाना की अगर बात करें तो एमटीएचएफ और एफडीओसीसीटी ये रहता है, और अरेबिडोप्सिस थालियाना क्रिप्टोग्राम सब जो है फोटोलाइसिस एमटीएचएफ करती है। क्रिप्टोग्राम एज ए टू डोमेन जो कि कहता है डायमेरिक प्रोटीन, एम जो है पीचार डोमेन, लेविन एफडी डोमेन, टाइमिन जो होता है ना एमटीएचएफ ठीक है, एज ए टू क्रोमोफोर फोटोसेंसिटिव डोमेन, सी टर्मिनल जो होता है इंटरैक्ट विद डी3 यूक्रेन गाइड, क्राइवन और क्राइन2 जो है वो कार्बन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, क्राई3 जो है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्राई2 जो है प्रीफेस डिटेल्ड होता है, लाइफ ट्रांजिशन जो मोस्ट स्टेबल होता है। भी देखो सबसे पहले क्या जब लाइट नहीं होती है ना, तो जो क्या होता है स्पाई वन और कॉपर वन, स्पाई वन और कॉपर वन क्या कर देता है, टीएफ का जो क्या करता है हाई फाई का डिग्रेडेशन कर देता है। ठीक है। जो क्राइवन है वो इनएक्टिव रहता है, सीसीटी जो है, और 20x हाई फाई का क्या होता है 20x फोटोजोमल द्वारा डिग्रेडेशन होता है। जैसे ही लाइट लाइट आती है तो जो ये जो सिमा क्राइवन है वो लाइट करके सीसी के ऊपर फोटो को ट्रांसफर करता है, तो ये क्या कर देता है पकड़ लेता है किसको, स्पाइपर और कोपावन को। ठीक है। और ये क्या करता है हाई फाई जो है एक्टिव हो जाता है, वो ये क्या करता है ट्रांसक्रिप्शन कर देता है, लेकिन हम सीसीटी को ओवर एक्सप्रेस कर देते हैं, है ना। तो क्या होता है आप लाइट दो या ना दो, तो जो रेस्पॉन्स है वो कंटिन्यू होता रहेगा, स्पाई वन जो है कोपावन है वो बैंड रहेगी। फिर देखो मिनरल आयन ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, है ना, मिनरल आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन तो 4 टाइप का होता है। एक तो एक्टिव प्रोसेस, मैक्सिमम चार्ज आयन होते हैं, और पैसिव की अगर बात करें ठीक है, तो इसमें सम चार्ज चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, या प्रोटोसिस पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे। थर्ड होता है प्रोटोसिस सिम्प्लास्ट। टाइप ऑफ एसेंशियल मिनरल के मैंने की अगर बात करें, फर्स्ट होता है मैक्रो या मेजर न्यूट्रिएंट, रिक्वायर की तरफ से 1000 मिलीग्राम कैल्शियम मेटल। ठीक है। और एसेंशियल इन प्लांट ग्रोथ रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी एंड रेफर्ड एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे कि एनपीके, पीकेसी, एनपीके कगमगस, मिलिट्री के एनपीके कगमगस। हम मैक्रोन्यूट्रिएंट जो माइनर ट्रेसर एलिमेंट रिक्वायर होते हैं कितने 100 मिलीग्राम पर केजी ड्राई वेट। अच्छा से प्लांट ग्रोथ रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंड रेफर्ड एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट दिस, जैसे कि देर आर बोरोन है, कॉपर है, बीकू आयरन है, क्लोरीन है, हेमन है, फेनई है, एन है, मोलिब्डेनम है, जोड़न है। देखो मोबाइल या नहीं, मोबाइल एलिमेंट की अगर बात करें, ठीक है, मोबाइल एलिमेंट जो होता है ना वो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, सोडियम है, जिंक है, मोलिब्डेनम है। मोबाइल की अगर बात करें तो हो जाता है कैल्शियम है, सल्फर है, आयरन है, बोरॉन है, और कॉपर है। डिफिशियंसी ऑफ मोबाइल एलिमेंट तो किसमें देखने को मिलेगी, ओल्डर लीफ के अंदर देखने को मिलेगी, डिफिशियंसी मोबाइल के अंदर हो जाता है तो न्यू ग्रो हो तो प्लांट के अंदर देखने को मिलेगी। फिर देखो अब बात करें हम क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट अकॉर्डिंग टू बायोकेमिकल ग्रुप, फर्स्ट के अंदर जाता है नस आ जाता है हमारा न्यूट्रिएंट आर किसके पार्ट है, वो कार्बन कंपाउंड के पार्ट है, क्योंकि कंस्टिट्यूट ऑफ अमीनो एसिड, अमाइड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा। फिर आता है एस जो है कंपोनेंट ऑफ सिस्टीन, सिस्टीन है, मिथ्योनिन है, कंस्टिट्यूट ऑफ कंस्टिट्यूट ऑफ लिपोइक एसिड है, कोएंजाइम ए, थायमिन, फॉस्फेट, ग्लूटाथियोन, बायोटिन 5, एडेनाइन सल्फेट एंड 3 फॉस्फो एडेनोसिन। ग्रुप सेकंड के अंदर आ जाते हैं एनर्जी और स्टोरेज स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि फॉस्फोरस कंपोनेंट ऑफ शुगर फोस्फेट, इसका कंपोनेंट है इसका शुगर फोस्फेट का, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, कोएंजाइम फॉस्फोलिपिड, फाइटिक एसिड हैज अ की रोल इन रिएक्शन दैट इन्वॉल्व एटीपी। फिर देखो ऐसा जो है डिपोजिटेड एज ए amorphous silica in cell wall contributes to cell wall mechanical properties including regenerative elasticity. There are bond complex with mannitol, mannan, poly polymonouric acid and other constituents of sulfur involved in segregation and nucleic acid metabolism.
देखो ग्रुप थर्ड के अंदर जो है किसका है, आयनिक फॉर्म के अंदर जो होता है, जैसे कि पोटेशियम जो है रिक्वायर्ड जो कॉन्वेक्स फ्रॉम मोडिल प्रोटीन एंड प्रिंसिपल कैटायन या स्टेबलाइज सेल टारगेट एंड मेंटेनिंग सेल इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी जाता है। कैल्शियम का जो होता है मिडिल लेमिना ऑफ सेल वॉल और रिक्वायर्ड जो फैक्टराइज सम एंजाइम इन्वॉल्वड in hydrolysis of ATP and phospholipid react as a second messenger in metabolic revolution। मैग्नीशियम की अगर बात करें, required by many enzymes involved in phosphate transfer constituents of the chlorophene molecule। फिर आता है chlorine, required for the photosynthetic reaction involved in oxygen revolution। फिर आता है xenon, constituent of alcohol dehydrogenase group का अम्लीय dehydrogenase और कार्बनिक anhydrase। फिर आता है sodium, involved in the regeneration of phosphoenol pyruvate in C4 and can plant substitute for potassium in some function। ग्रुप फोर के अंदर आता है जो रेडक्स रिएक्शन के अंदर आ जाता है, जैसे कि आयरन है कंस्टिट्यूट ऑफ, जैसे कि आयरन आ जाता है, एमन आ जाता है, कॉपर आ जाता है, निकल आ जाता है, मोलिब्डेनम आ जाता है। आयरन जो है कंस्टिट्यूट ऑफ साइटोक्रोम एंड नॉन हीम आयरन प्रोटीन इन्वॉल्वड इन फोटोसिस्टम नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड रेस्पिरेशन। एमन जो है रिकॉर्ड फॉर एक्टिविटी ऑफ सम डिहाइड्रोजन डिकार्बोक्सिलेज काइनेज ऑक्सीडेज एंड ऑक्सीडेज इन्वॉल्वड इन अदर कैटायन activated enzyme and photosynthetic oxygen revolution। ऊपर जो है कंपोनेंट है ascorbic acid oxidase, tyrosinase, monoamine oxidase, uricase, cytochrome oxidase, phenolase, lactase and phosphorylation। निकल जो है constituent of oxidation nitrogen fixation प्रक्रिया का शुरू हाइड्रोजनेज, मोलिब्डेनम का शुरू नाइट्रोजनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज एंड xanthine dehydrogenase।